Okay, good morning, student. In our previous period, we learn about the changes. There are two types of the changes: physical change and the chemical change. Okay. Also, we perform some activities to understand the chemical change. Chemical changes better understand करने के लिए हमने कुछ activities भी study की है, right? After that. Now today we are going to learn the chemical reaction. Actually, in my previous period I already tell you that a chemical change is happened when a chemical reaction occurs. When a chemical reactions occurs, at that time chemical change will be happen. Understand? So all that things we learn in our previous period or in our studies period. Now today we learn about what exactly the chemical reaction है ना. chemical reaction किसे बोलेंगे, हमें study करना है. Okay, so the definition I have write on the board, exact definition of the chemical reaction that I have write on the board, that the process in which some substances undergo bond breaking and are transformed into the new substances. तो बेटा chemical reaction मतलब ऐसी कुछ substances है that substances undergo the bond breaking. मतलब कोई substance या compound उनमें क्या होता है कि उनमें जो bond रहता है, whether it is ionic bond or the covalent bond, उस bond का क्या होता है, वो bond क्या होता है बेटा, break होता है, right? Means they undergoes the bond breaking, right? They undergoes the bond breaking by any situation or by any conditions, right? And they transform into the न्यू सब्सटेंसेस. मतलब जो प्रीवियसली जो ओरिजिनल सब्सटेंस है उनका बॉन्ड ब्रेक होके उनका ट्रांसफॉर्मेशन नए सब्सटेंस में, न्यू सब्सटेंस में होता है और बाय द फॉर्मेशन ऑफ द न्यू बॉन्ड. और न्यू बॉन्ड क्या होते हैं बेटा, फॉर्म होते हैं. तो ऐसे प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, केमिकल रिएक्शन. मतलब केमिकल रिएक्शन मतलब पर्टिकुलर सब्सटेंस का बॉन्ड ब्रेक होके नया सब्सटेंस फॉर्म होना बाय फॉर्मेशन ऑफ द न्यू बॉन्ड. बराबर एक नहीं, इसको हम क्या बोलेंगे बेटा, केमिकल रिएक्शन. ओके, फॉर एग्जाम्पल in our day to day life we see the many examples of the chemical reaction or many chemical reactions are occurs in our day to day life. For example, combustion of the coal, you know, combustion of example जैसे combustion of coal, coal का combustion होता है, ये reaction हमने study किए, combustion of what, coal. ओके, तो ये reaction कंबशन ऑफ कोल किसके प्रेजेंट में होता है, इन द प्रेजेंस ऑफ एयर. मींस इट मींस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. तो यहाँ पे कोल का कंबशन होके क्या फॉर्म होता है, कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होता है. विच गैस इज फॉर्म, कार्बन डाइऑक्साइड गैस. ओके, सो कोल इज नथिंग बट द कार्बन. कोल में क्या रहता है बेटा, कार्बन. तो कार्बन इज व्हेन रिएक्ट विद द, इसका कंबशन होना मतलब कार्बन या कोल is react or it undergoes combustion in the presence of air. Air means under the presence of oxygen. So then it will form the carbon dioxide, right? What will form, carbon dioxide. So here what will happen, carbon dioxides, right? Then carbon and the oxygen react and the carbon dioxide is formed. ओके, सो दिस इज अ केमिकल रिएक्शन. अब इसको हम क्या बोलेंगे बेटा, केमिकल रिएक्शन. अब केमिकल रिएक्शन में बेसिकली दो पार्ट होते हैं. ये एग्जांपल के तौर पे मैंने जैसे कोल का कंबशन आपको बताया. ओके, तो बेटा व्हेनेवर any chemical reaction has been occurs, so it contain two parts. So which are that two parts? First part is the reactant, right? And second one is the product. Second कौन सा है, product. Okay, तो रिएक्टेंट एक पार्ट रहता है और दूसरा रहता है प्रोडक्ट. अब रिएक्टेंट किसे बोलेंगे और प्रोडक्ट किसे बोलेंगे. ओके, तो एक्चुअली जो ओरिजिनल सब्सटेंस रहता है विच अंडरगोज द केमिकल चेंज और विच अंडरगोज द रिएक्शन, इट इज कॉल्ड द रिएक्टेंट. बराबर है. तो रिएक्टेंट किसे बोलेंगे, जिसमें एक्चुअली रिएक्शन होती है और जिस सब्सटेंस का बॉन्ड क्या होता है बेटा, ब्रेक होता है, उसको हम बोलेंगे रिएक्टेंट. मतलब ओरिजिनल सब्सटेंस, right? Original substance is called as the reactant which undergoes the bond breaking. जिसमें क्या होती है, bond breaking होती है, या which undergoes the chemical reactions. Okay, so that original substance is called as the reactants, right? Then a product किसे बोलेंगे, तो बेटा product the newly
फॉर्मिंग सब्सटेंस, जो नया सब्सटेंस फॉर्म होता है, बराबर है, उसको हम क्या बोलेंगे, प्रोडक्ट बोलेंगे, बराबर है। न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन होके जो न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है उसको हम क्या बोलेंगे, प्रोडक्ट। ओके, समझ में आया क्या? केमिकल रिएक्शन में बेसिकली दो पार्ट होते हैं, एक रिएक्टेंट और दूसरा प्रोडक्ट। रिएक्टेंट मतलब ओरिजिनल सब्सटेंस एंड प्रोडक्ट मतलब जो रिएक्शन होने के बाद जो नया सब्सटेंस फॉर्म होता है उसको हम बोलेंगे बेटा प्रोडक्ट। ओके, अब ये रिएक्शन कंबशन ऑफ द कोल रिएक्शन आपके सामने दी है, तो यहाँ पे बेटा रिएक्टेंट जो है मतलब ये कोल, कार्बन और ऑक्सीजन, दीज आर द रिएक्टेंट। ये क्या है बेटा, इसमें ये रिएक्टेंट है। कौन कौन रिएक्टेंट है? कार्बन और ऑक्सीजन आर द रिएक्टेंट। और ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ये क्या है बेटा, ये प्रोडक्ट है। अंडरस्टैंड? मतलब ये जो एग्जाम्पल यहाँ पे दिया है, यहाँ पे रिएक्टेंट कौन है, कार्बन और ऑक्सीजन, इन दोनों में क्या हो रही है बेटा, रिएक्शन हो रही है, बराबर है कि नहीं? और रिएक्शन होगी इन दोनों में क्या हो रहा है, बॉन्ड ब्रेक हो रहा है कि नहीं, इनमें रिएक्शन हो रही है और नया जो सब्सटेंस फॉर्म हुआ है जिसको हम क्या बोलेंगे, प्रोडक्ट, कार्बन डाइऑक्साइड, ये क्या है बेटा, प्रोडक्ट। अंडरस्टैंड? So the reactant and the product means reactant substances which actually taking part in the chemical reaction is called as the reactant, बराबर है। और the substances which form by the reaction, by the chemical reaction, it is called the product। ये हो गया बेटा reactant और product के बारे में। अब actually जो chemical reaction है, बराबर है कि नहीं, whatever the chemical reaction, ये केमिकल रिएक्शन जो है बेटा, इट राइट इन द फॉर्म ऑफ केमिकल इक्वेशन। जनरली जितने भी केमिकल रिएक्शंस है वो कौन से फॉर्म में लिखा जाता है, कौन सी फॉर्म में लिखी जाती है, दैट इज द केमिकल इक्वेशन। केमिकल रिएक्शंस आर रिप्रेजेंटेड और राइट इन द फॉर्म ऑफ केमिकल इक्वेशन। बट बिफोर द केमिकल रिएक्शन इज written or write in the form of chemical equation, the chemical reactions are write in the word equation। तो बेटा word equation देखो, केमिकल इक्वेशन, एक्चुअली मैंने क्या बोला है कि केमिकल रिएक्शंस आर रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ केमिकल इक्वेशन नाउ रिसेंटली, बराबर है। लेकिन इस मतलब इसके पहले जो केमिकल रिएक्शंस होती थी वो वर्ड इक्वेशन के फॉर्म में लिखी जाती थी। कौन से फॉर्म में लिखी जाती थी बेटा, वर्ड इक्वेशन के फॉर्म में लिखी जाती थी। तो देखो सबसे पहले मैं वर्ड इक्वेशन के बारे में बताऊंगा कि एक्चुअली है ना, सबसे पहले केमिकल रिएक्शंस आर राइट इन द वर्ड इक्वेशन। ओके, तो वर्ड इक्वेशन क्या होता है, तो बेटा जैसे एक केमिकल रिएक्शन एक्टिविटी नंबर 2 में हमने देखा है कि जिंक डस्ट हमने किस में ऐड की थी, ब्लू कलर के कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में ऐड की थी, है कि नहीं। जिंक डस्ट, व्हाट इज अवर एक्टिविटी, जिंक डस्ट इज एडेड इन द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, है ना। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन कौन से कलर का रहता है, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, इट इज इन ब्लू कलर, है कि नहीं। ब्लू कलर का जो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में हमने एक्टिविटी नंबर 2 है ना, हमने देखा है टेक्स्ट बुक में, तो वहाँ पे ये जिंक डस्ट ऐड की थी किसमें, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में। तो क्या हुआ था बेटा, कलरलेस है ना, कलरलेस कंपाउंड फॉर्म हुआ था, कलरलेस जिंक सल्फेट इस फॉर्म, है ना। कलरलेस कौन सा प्रोडक्ट फॉर्म हुआ था वहाँ पे, जिंक सल्फेट, है ना, ये फॉर्म हुआ था। एक्चुअली इस रिएक्शन में क्या हुआ था बेटा कि इस रिएक्शन में जिंक ने किसको रिप्लेस किया था, कॉपर सल्फेट में से किसको रिप्लेस किया था, कॉपर को, और क्या फॉर्म हुआ था बेटा, जिंक सल्फेट। चलो एक बार उसका रिएक्शन देख लेते कि एक्चुअली वर्ड में कैसी लिखी जाती थी, है कि नहीं। अब ये समझो, दिस इज द व्हाट स्टेटमेंट ऑफ द केमिकल रिएक्शन। ये एक्चुअली केमिकल रिएक्शन, कौन सी केमिकल रिएक्शन है कि जिंक डस्ट इज एडेड इन अ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन या कॉपर सल्फेट सॉल्ट। जिंक हमने किस में ऐड किया, कॉपर सल्फेट सॉल्ट में। तो बेटा इनिशियली इस रिएक्शन को वर्ड के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता था, तो उसको बोला जाता था वर्ड इक्वेशन। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे क्या ऐड किया हमने, कॉपर सल्फेट, मतलब कॉपर सल्फेट, देखो वर्ड इक्वेशन कैसे लिखा जाता था, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, राइट। हाँ, इसमें क्या ऐड किया था, जिंक प्लस जिंक, ओके। और जो प्रोडक्ट फॉर्म हुआ था वो कौन सा प्रोडक्ट फॉर्म हुआ था, द प्रोडक्ट फॉर्म इज व्हाट, जिंक सल्फेट, कलरलेस जिंक सल्फेट, राइट, एंड प्लस क्या निकला था बाहर बेटा, कॉपर, ओके। तो ये दिस इज द वर्ड इक्वेशन, मतलब पहले केमिकल रिएक्शन
ऐसे लिखी जाती थी, मतलब वर्ड में लिख ली जाती थी, राइट। जैसे कॉपर सल्फेट है तो कॉपर सल्फेट, जिंक ऐड किया तो जिंक, जो नया प्रोडक्ट फॉर्म हुआ है बराबर की जिंक सल्फेट, तो उसको जिंक सल्फेट करके लिखा जाता था, कॉपर है तो कॉपर सल्फेट। तो इस टाइप से भी केमिकल रिएक्शन लिखी जाती थी, तो इसको बोला जाता है बेटा वर्ड इक्वेशन, मतलब वर्ड में लिखा जाता था। केमिकल रिएक्शन इज रिप्रेजेंटेड इन अ वर्ड, पर्टिकुलर वर्ड ऑफ दैट कंपाउंड, है ना। जो कंपाउंड थे उनके नाम लिखे जाते थे डायरेक्टली, उन कंपाउंड के रिएक्शन में जो कंपाउंड्स पार्टिसिपेट हो रहे हैं, रिएक्शन में जो सब्सटेंसेस पार्टिसिपेट हो रहे हैं, उनके डायरेक्टली क्या लिखे जाते थे बेटा, नाम लिखे जाते थे। तो ऐसा जो इक्वेशन है उसको बोलते हैं वर्ड इक्वेशन, बराबर है कि नहीं। इसको क्या बोलेंगे, वर्ड इक्वेशन। तो ये फिर वर्ड इक्वेशन मतलब ये क्या होता था कि बहुत लेंथी होता था, है कि नहीं, उनके नाम लिखना, ये लिखना बहुत लेंथी है कि नहीं। तो इसके बाद तो ये वर्ड इक्वेशन फिर साइंटिस्ट ने क्या किया कि इसको भी और शॉर्टली कैसे किया जाता है, मतलब शॉर्ट और बहुत इंफॉर्मेटिव कैसे किया जाता है ना, तब जाके क्या आया तुम्हारा केमिकल इक्वेशन, है कि नहीं। फिर पहले तो वर्ड इक्वेशन में केमिकल रिएक्शन जाती थी, लिखी जाती थी, ठीक है, लेकिन ये थोड़ा कैसे हुआ था कि बहुत मतलब ज़्यादा क्या हो रहा था, ये लेंथी हो रहा था, है ना। तो उसके वजह से बाद में जो केमिकल रिएक्शंस हो किसके फॉर्म में लिखी जाती थी बेटा, दैट इज केमिकल इक्वेशन के फॉर्म में। मतलब वर्ड इक्वेशन के बाद कौन आया, केमिकल इक्वेशन। तो देखो केमिकल इक्वेशन है ना, केमिकल इक्वेशन मतलब केमिकल रिएक्शंस आर राइट इन द केमिकल इक्वेशन। तो बेटा केमिकल इक्वेशन को कैसे डिफाइन करेंगे एक बार बता देता हूँ, ऑलरेडी आपने पढ़ा है 9th में वगैरह पढ़ा होगा कि केमिकल इक्वेशन किसे बोलेंगे, कि केमिकल रिएक्शन आर राइट और रिप्रेजेंटेड इन द केमिकल रिएक्शन। तो एक्चुअली केमिकल इक्वेशन, द केमिकल रिएक्शंस आर राइट इन द कंडेंस फॉर्म, है ना। किस कंडेंस फॉर्म में क्या किए जाती है कि जो वट एवर द रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट है उनके जो नाम है, तो उनके नाम कंडेंस फॉर्म में, है ना। कंडेंस फॉर्म मतलब कि कंपाउंड या पर्टिकुलर एलिमेंट या कंपाउंड या सब्सटेंस, उसका जो नाम है तो उसका जो कंडेंस फॉर्म किस में आता है, उसके मॉलिक्यूलर फार्मूले में या सिंबल में, राइट। तो केमिकल इक्वेशन में क्या होता है कि जो वट एवर द कंपोनेंट ऑफ द केमिकल रिएक्शन विच एक्चुअली टेकिंग पार्ट इन द केमिकल रिएक्शन, दे राइट in the form of their molecular formula or the symbol, बराबर है। molecular formula और symbol इस कंडेंस फॉर्म में जो इक्वेशन लिखा जाता है केमिकल रिएक्शंस का, उसको हम बोलेंगे केमिकल इक्वेशन, बराबर है। केमिकल इक्वेशन मतलब क्या होता है कि पर्टिकुलर कंपाउंड जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं उनको उनके मॉलिक्यूलर फार्मूले की मदद से या उनके सिंबल के मदद से उनका क्या करना, रिप्रेजेंटेशन करना, राइट, उसको बोलेंगे हम केमिकल इक्वेशन। तो यही एक्टिविटी जैसे जिंक, ये केमिकल इक्वेशन, ये वर्ड इक्वेशन है, बराबर है। तो इसको केमिकल इक्वेशन में कैसे लिखा जाता है, तो फॉर एग्जांपल जैसे कि कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट का मॉलिक्यूलर फार्मूला बेटा CuSO4, और जिंक, राइट, जिंक का क्या है Zn, एंड विच क्या हुआ, ये जिंक किसको रिप्लेस करता है, कॉपर सल्फेट को रिप्लेस करता है। तो ये जो जिंक सल्फेट उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला ZnSO4 और क्या रिलीज होता है, कॉपर, ओके। स्टेट भी लिखी जाती है यहाँ पे, जैसे ये सॉलिड, इट इज ऑल्सो सॉलिड, है ना, ये एक्वस, ये एक्वस इसकी स्टेट। तो ये रिएक्शन, ये जो यहाँ पे केमिकल रिएक्शन है, ये मैंने वर्ड इक्वेशन के फॉर्म में और ये केमिकल इक्वेशन के फॉर्म में। तो इस तरह से बेटा केमिकल रिएक्शंस आर राइट इन द फॉर्म ऑफ केमिकल इक्वेशन। डू यू अंडरस्टैंड द वर्ड इक्वेशन एंड द केमिकल इक्वेशन? समझ में आया वर्ड इक्वेशन किसे बोलते हैं और केमिकल इक्वेशन किसे बोलते हैं? तो ओके, तो ये सिंपल सा मतलब एग्जाम्पल हमने देखा कि जो एक्टिविटी नंबर 2 में हमने पढ़ा है, ओके। तो इसके बाद बेटा अब ये चलो केमिकल इक्वेशंस है, मैंने यहाँ पे इस साइड में, अब इस साइड में जो लिखे हैं, है ना, ये जनरली रिएक्टेंट्स है, इनमें रिएक्शन हो रही है, और ये जो नए सब्सटेंसेज या कंपाउंड फॉर्म है इसको प्रोडक्ट बोलेंगे, बराबर है। ये दो बातें हमने स्टडी की है। लेकिन ये केमिकल इक्वेशन एक्चुअली कैसे लिखा जाता है ना, हाउ टू राइट द केमिकल इक्वेशन, मतलब केमिकल इक्वेशन कैसे लिखा जाता है, उसके क्या रूल्स है, वो भी हमें स्टडी करना बहुत ज़रूरी है। तो हम अभी पढ़ेंगे कि व्हाट आर द रूल्स फॉर राइटिंग द केमिकल इक्वेशंस। तो रूल्स फॉर राइटिंग द केमिकल इक्वेशन, बराबर है, केमिकल रिएक्शंस आर राइट इन द फॉर्म ऑफ केमिकल इक्वेशन। अब केमिकल इक्वेशन कैसे लिखा जाता है ना, उसके क्या रूल्स है? तो स्पेशली बेटा केमिकल रिएक्शन के दो पार्ट होते हैं, एक रिएक्टेंट, बराबर है,
बराबर। रिएक्टेंट मतलब द सब्सटेंस विच एक्चुअली टेक पार्ट इन द केमिकल रिएक्शन, राइट, उसको रिएक्टेंट बोलते हैं। और दूसरा है बेटा तुम्हारा प्रोडक्ट, है कि नहीं। तो एक बात सबसे पहला रूल हम देखेंगे कि एक्चुअली कि पहला रूल है ना, द रिएक्टेंट्स आर राइट ऑन द ऑलवेज राइट ऑन द लेफ्ट साइड, है ना, लेफ्ट साइड। रिएक्टेंट हमेशा कौन सी साइड में लिखे जाते हैं बेटा, लेफ्ट साइड में, ओके। और प्रोडक्ट कौन सी साइड में लिखे जाते हैं, राइट साइड में। तो पहला रूल क्या है कि रिएक्टेंट्स आर राइट ऑन द लेफ्ट साइड एंड व्हाट द products are written on the what right side, बराबर है। पहला रूल कि जनरली जो रिएक्टेंट है जिसमें एक्चुअली रिएक्शन होती है वो लेफ्ट साइड में लिखना चाहिए, और प्रोडक्ट कौन सी साइड में लिखना चाहिए बेटा, व्हाट प्रोडक्ट कौन सी साइड में लिखना चाहिए, राइट साइड में। और इन बिटवीन द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, बराबर, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में एक एरो रहता है। लुक एट दिस एरो, है ना, मैं एरो यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ, राइट। तो ये एरो रहता है, क्या होता है, पहला रूल क्या है कि रिएक्टेंट हमेशा लेफ्ट साइड में लिखो और प्रोडक्ट हमेशा राइट साइड में लिखो। रिएक्टेंट क्या होता है, प्रोडक्ट क्या होता है, ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, ओके। तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में एक एरो रहता है, बराबर है कि नहीं। तो दोनों के बीच में क्या देना है, आपको एरो देना है। On that reactant, that arrow shows the direction of the chemical reaction. ये एरो क्या बताता है बेटा, केमिकल रिएक्शन का डायरेक्शन। मतलब दिस इज द रिएक्टेंट। एरो का देखो, एरो कौन से डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में। मतलब ये क्या होगा बेटा, प्रोडक्ट होगा, और एरो के बैक साइड में क्या रहता है, रिएक्टेंट। अंडरस्टैंड, मतलब एरो इज पॉइंटिंग टुवर्ड द प्रोडक्ट। एरो कौन से डायरेक्शन में पॉइंटेड होना चाहिए, प्रोडक्ट के डायरेक्शन में पॉइंटेड होना चाहिए। मतलब एरो से भी पता कर सकते हैं कि हम रिएक्टेंट कौन है और प्रोडक्ट कौन है। अंडरस्टैंड। तो रिएक्टेंट आर ऑलवेज राइट ऑन द लेफ्ट साइड एंड प्रोडक्ट आर on the right side, and in between the reactant and product there is a arrow, and arrow is pointed toward the product, right. Another thing is that arrow shows the what direction of the chemical reaction, okay. उसके बाद इफ जैसे एक एग्जांपल के तौर पे हम कार्बन और ऑक्सीजन और ये कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म हुआ, राइट। तो बेटा ये कार्बन और ऑक्सीजन है ना, एरो की इस साइड में, मतलब दीज आर द रिएक्टेंट्स। ये क्या हो गए तुम्हारे रिएक्टेंट्स, अंडरस्टैंड। एंड दिस इज द कार्बन डाइऑक्साइड, दिस इज द प्रोडक्ट, बराबर है। ये क्या हो गया तुम्हारा प्रोडक्ट। अब ये दोनों के बीच में ये प्रोडक्ट और रिएक्टेंट, इनके बीच में एरो है। कौन से डायरेक्शन में एरो इज पॉइंटेड टुवर्ड द डायरेक्शन ऑफ द प्रोडक्ट, अंडरस्टैंड। तो ये रिएक्टेंट हमने लेफ्ट साइड में लिखा एरो के, और प्रोडक्ट हमने राइट साइड में लिखा, अंडरस्टैंड। उसके बाद इफ देयर आर टू और मोर रिएक्टेंट और टू और मोर प्रोडक्ट, समझो तुम्हारे केमिकल रिएक्शन में एक या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट है या क्या है बेटा, प्रोडक्ट है। जैसे दो से ज़्यादा क्या है, रिएक्टेंट है या प्रोडक्ट है, बराबर हो सकते हैं। तो वो केमिकल रिएक्शन कैसे लिखेंगे, उनको कैसे लिखेंगे। तो दूसरा रूल्स जैसे एरो का हो गया है ना, एरो, राइट। उसके बाद इफ देयर मोर देन टू रिएक्टेंट और मोर देन व्हाट, टू reactant or product, then how we write the chemical equation if there are more than two reactant or product। तो जब एक या है ना, दो से ज़्यादा या एक से ज़्यादा रिएक्टेंट या प्रोडक्ट आपकी केमिकल रिएक्शन में रहते, तो उन प्रोडक्ट के बीच में आपको क्या करना है बेटा, प्लस साइन, है ना। उनके बीच में कौन सा साइन ऐड करना है, प्लस साइन, है ना। दे आर write the plus sign in between that reactant and the product। जैसे फॉर एग्जांपल जिंक है ना, CuSO4 प्लस जिंक, बराबर है। ये दो रिएक्टेंट है, देखो इनके बीच में मैंने प्लस साइन लिखा है ना, दो रिएक्टेंट्स इज देयर। देन जो फॉर्म हुआ था ZnSO4 और प्लस Cu, बराबर है। अब ये जो केमिकल रिएक्शन मैंने लिखी है यहाँ पे, ये बराबर कितने रिएक्टेंट है बेटा, ये एक रिएक्टेंट और ये दूसरा प्रोडक्ट कितने, एक और दो। कैसे पता चला कि है ना, दो रिएक्टेंट को लिखने के लिए कौन सा साइन यूज़ किया मैंने, प्लस साइन। दो प्रोडक्ट के बीच में दो प्रोडक्ट, इसलिए यहाँ पे प्लस साइन। मतलब इफ देयर आर टू और मोर reactant in the particular chemical reaction, then
you should write the plus sign in between them to separate the reactant or the product. ये हो गया बेटा क्या थर्ड या सेकंड रूल, बराबर. ये नेक्स्ट रूल. उसके बाद टू मेक द केमिकल इक्वेशन मोर इंफॉर्मेटिव, है ना. तुम्हारा जो केमिकल इक्वेशन है वो ज़्यादा इंफॉर्मेटिव होना चाहिए, बराबर है कि नहीं. जैसे, है ना, तो उसके लिए हम उनकी स्टेट्स उसके नीचे लिखना बहुत ज़रूरी है. जैसे स्टेट्स केमिकल सब्सटेंसेस की स्टेट कौन सी रह सकती है, जैसे सॉलिड स्टेट्स है, राइट, बराबर है. लिक्विड है कि नहीं. उसके बाद गैसेस है, राइट, एक्वस है कि नहीं. ये स्टेट्स है, बराबर है कि नहीं. तो बेटा टू मेक द केमिकल इक्वेशन मोर इंफॉर्मेटिव, राइट, तो उसके नीचे उनकी स्टेट्स लिखना जरूरी है. जैसे कोई सब्सटेंस केमिकल रिएक्शन में सॉलिड है तो उसको एस से रिप्रेजेंट किया जाएगा, लिक्विड है तो एल से, गैसेस है तो जी से, और एक्वस है तो बेटा ए क्यू से, है ना. एक्वस स्टेट है तो ए क्यू से. जैसे फॉर एग्जाम्पल इस रिएक्शन में कॉपर सल्फेट, उसका स्टेट्स कौन सा है, एक्वस, तो उसके साइड में इसे ब्रैकेट में क्या लिखना पड़ेगा, एक्वस के लिए क्या है बेटा, ए क्यू. अब एक्वस मतलब क्या होता है, एक्वस मतलब कोई भी सॉलिड सब्सटेंस का वाटर में सॉल्यूशन, है ना. मतलब कॉपर सल्फेट ये जो सॉल्ट है उसका किस में सॉल्यूशन, वाटर में सॉल्यूशन रहता है, तो उसको बोलेंगे हम एक्वस सॉल्यूशन ऑफ द कॉपर सल्फेट. अंडरस्टैंड, समझ में आया. एक्वस स्टेट क्या होता है, तो वाटर में किसी भी सॉलिड सब्सटेंस का जो सॉल्यूशन होता है उसको एक्वस स्टेट, तो ये एक्वस. जिंक का स्टेट सॉलिड है तो ये यहाँ पे इसे ब्रैकेट में यस लिखेंगे. ये अगेन एक्वस स्टेट है, इधर लिखेंगे ये सॉलिड है ना. तो ये स्टेट्स मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट की है. तो स्टेट्स का जैसे सॉलिड के लिए यस यूज करो, लिक्विड के लिए यल, गैसेस के लिए क्या जी, और एक्वस के लिए ए क्यू, है ना. ये स्टेट भी आपको क्या करना है बेटा, उस मतलब जो मॉलिक्यूलर फार्मूले है या जो भी सिंबल है कंपाउंड के, वो उनके नीचे ब्रैकेट में क्या है लिखना है. अंडरस्टैंड. समझो जैसे यहाँ पे ये स्टेट्स हमने यहाँ पे लिखी है, बराबर है कि नहीं. समझो कोई केमिकल रिएक्शन ऐसी रहती है कि उसमें प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है, बराबर है कि नहीं. पीपीटी फॉर्म होता है, मतलब सॉलिड इनसोलुबल सॉलिड. प्रेसिपिटेट मतलब बेटा इनसोलुबल सॉलिड. तो एट दैट टाइम यू मे राइट द डाउनवर्ड, है ना. वो जो प्रेसिपिटेट रहता है तो उसके साइड में हमें इसे डाउनवर्ड डायरेक्शन में एरो देना चाहिए. इफ देयर इज अ प्रेसिपिटेट, किसी केमिकल रिएक्शन में प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है जिसको हम पीपीटी बोलते हैं. पीपीटी प्रेसिपिटेट मतलब इनसोलुबल सॉलिड. तो उसके नीचे ऐसा डाउनवर्ड डायरेक्शन में एरो. ओके. तो किसी रिएक्शन में गैस फॉर्म होती है, जैसे हमने देखा था कि C+O2 इट गिव्स CO2, बराबर है. मैंने क्या बोला कि गैस को जी से रिप्रेजेंट करो. अदरवाइज आप गैस रहती है तो उसके साइड में ऐसा अपवर्ड डायरेक्शन में एरो भी लिख सकते हो. इफ देयर इज इवोल्यूशन ऑफ द गैस इन पर्टिकुलर केमिकल रिएक्शन, पर्टिकुलर केमिकल रिएक्शन में या कोई गैस इवॉल्व होती है, बराबर है, तो आप ऐसे अपवर्ड डायरेक्शन में एरो दे सकते हो, है ना. मतलब डाउनवर्ड डायरेक्शन में एरो किसे देना है आपको, इफ द प्रेसिपिटेट इज फॉर्म. और अपवर्ड डायरेक्शन में एरो कहाँ पे देखना है, इफ द गैस इज रिलीज और गैस इज लिबरेटेड इन द पर्टिकुलर केमिकल रिएक्शन. ये हो गया. अंडरस्टैंड. इफ यू गिव द हीट, बराबर है. ये एरो के बारे में मैंने बताया. समझो कोई केमिकल रिएक्शन रहती है, जैसे फॉर एग्जांपल कैल्शियम कार्बोनेट इज व्हेन हीटेड देन इट फॉर्म कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस. यारो लिख लिया मैंने, गैस है इसलिए क्या लिख लिया बेटा, यारो. अब इसको हीट करना है. समझो आप किसी केमिकल रिएक्शन में आउटसाइड हीट देते हो, है ना, बाहर से उसको क्या करते हो, हीट करते हो. तो जो हीट का जो सिंबल है वो है बेटा ट्रायंगल. द सिंबल ऑफ द हीट इज लाइक अ ट्रायंगल. तो ये ट्रायंगल आपको कहाँ पे लिखना है बेटा, एरो पे लिखना है. कहाँ पे लिखना है, एरो पे लिखना है. मतलब एरो पे ये ट्रायंगल होने का मतलब क्या होता है कि इस रिएक्शन में ये जो कैल्शियम कार्बोनेट, इसको आप क्या कर रहे हो, हीट कर रहे हो. इसको क्या कर रहे हो बेटा, हीट कर रहे हो. तो यहाँ पे ये रिएक्टेंट है और ये दो क्या है बेटा, प्रोडक्ट. आफ्टर हीटिंग दिस कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्साइड एंड द कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज फॉर्म और द रिलीज. अंडरस्टैंड. तो ये हीट है ना, रूल्स किसके बारे में है, इफ यू आर गिविंग द आउटसाइड हीट टू द पर्टिकुलर केमिकल रिएक्शन. ये एक. उसके बाद समझो एक आध केमिकल रिएक्शन है जिसमें हीट क्या होते हैं बेटा, है ना, हीट इज गिवन आउट, है ना. ये आउटसाइड हीट देने पे यहाँ पे लिखते. समझो कोई केमिकल रिएक्शन है कि उसमें हीट लिबरेट होती है या गिवन आउट होती है, बराबर है. तो उस केमिकल रिएक्शन को कैसे लिखा जाता है, जैसे कि ये एक बार CuSO4
प्लस जिंक इट गिव्स ZnSO4 प्लस व्हाट Cu। तो समझो इस रिएक्शन में समझो हीट क्या हो गई, लिबरेट हो गई, या हीट क्या हो गई बेटा, रिलीज हो गई। तो उस हीट को कहाँ पे लिखा जाता है, प्रोडक्ट साइड में, राइट। ये प्रोडक्ट साइड में प्लस करके ऐसी हीट लिखा जाता है। समझ में आया क्या बेटा, राइट, अंडरस्टैंड। तो इस तरह से ये पर्टिकुलर या रूल्स है ना, टू राइट द केमिकल इक्वेशंस, बराबर है। मतलब जैसे किसी केमिकल इक्वेशन में हीट निकलती है बाहर, तो इस टाइप से वो केमिकल इक्वेशन लिखा जाता है, अंडरस्टैंड। उसके बाद बेटा कोई कोई केमिकल रिएक्शन ऐसी होती है कि वो सिंपल वे से होती नहीं है। मतलब उसको कुछ जैसे कि कुछ फिजिकल जो है क्वांटिटीज़ है उसकी रिक्वायरमेंट रहती है, जैसे पर्टिकुलर टेम्परेचर है कि नहीं। उसके बाद पर्टिकुलर कैटालिस्ट है ना, कैटालिस्ट के बारे में ऑलरेडी मैंने बताया था, है ना। तो ये सभी चीज़ें केमिकल इक्वेशन में कहाँ पे लिखी जाती है, वो जो एरो है ना, एरो के इस पे लिखी जाती है। मतलब टेम्परेचर लिखना है, कोई कैटालिस्ट लिखना है ना, ये सभी चीज़ें है ना, प्रेशर लिखना है ना, पर्टिकुलर रिएक्शन में प्रेशर अप्लाई कर रहे हो और कोई पर्टिकुलर टेम्परेचर आप मेंशन करना है। तो ये सभी चीज़ें कहाँ पे रिप्रेजेंट की जाती है बेटा, तुम्हारे एरो पे, है ना। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में जो एरो रहता है ना, उस पर क्या की जाती है, वो लिखी जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल वेजिटेबल ऑयल का जब हाइड्रोजनेशन होता है ना, वेजिटेबल ऑयल, ये रिएक्शन देखी होंगी आपने, वेजिटेबल ऑयल का हाइड्रोजनेशन, राइट, किसके प्रेजेंस में होता है, वेजिटेबल ऑयल का हाइड्रोजनेशन इन द प्रेजेंस ऑफ निकेल कैटालिस्ट। कौन सा कैटालिस्ट है यहाँ पे, निकेल, है ना। तो निकेल, जैसे ये कैटालिस्ट का नाम लिखना है। और उसके बाद कितने डिग्री सेल्सियस पे, 60 डिग्री सेल्सियस, और इसमें से क्या फॉर्म होता है, वनस्पति घी फॉर्म होता है। ये रिएक्शन आपने देखी। सो विच प्रोडक्ट इज फॉर्म, वनस्पति घी इज फॉर्म। तो जैसे ये निकेल नाम का कैटालिस्ट है, 60% टेम्परेचर है, समझो प्रेशर है ना, ये सभी चीज़ें कहाँ पे लिखी जाती है, बिलो और अबव द एरो, है कि नहीं। तो मतलब जिस रिएक्शन में ये होता है वहाँ पे हमें ये लिखना चाहिए। तो ये सभी चीज़ें कहाँ पे लिखनी चाहिए, कैटालिस्ट की, यहाँ पे निकेल कैटालिस्ट है, मतलब ये जो हाइड्रोजनेशन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट निकेल। कैटालिस्ट क्या होता है बेटा, कैटालिस्ट ऐसा सब्सटेंस होता है जिसको हम केमिकल रिएक्शन में ऐड करते हैं, किस लिए, टू स्पीड अप द केमिकल रिएक्शन। मतलब केमिकल रिएक्शन का रेट इंक्रीज करने के लिए कैटालिस्ट क्या किया जाता है, यूज़ किया जाता है, या पर्टिकुलर रिएक्शन में ऐड किया जाता है। बट एक्चुअली कैटालिस्ट डजंट टेक पार्ट इन द केमिकल रिएक्शन, लेकिन वो केमिकल रिएक्शन में एक्चुअली पार्टिसिपेट करता नहीं है, जस्ट इट स्पीड अप द केमिकल रिएक्शन। तो ये कैटालिस्ट है, प्रेशर है, ये सभी चीज़ें, ये जो एरो रहता है ना, इसके अफर्ड और बिलो है ना, क्या किए जाते हैं, लिखे जाते हैं। उसके बाद जैसे कुछ ऐसी केमिकल रिएक्शन रहती है कि जिसमें जो रिएक्टेंट रहते हैं या प्रोडक्ट रहते हैं उनकी कुछ स्पेशल क्वालिटीज़ है ना, उनकी कुछ स्पेशल इंफॉर्मेशन है। जैसे कोई एसिड यूज़ करना है ना, वो कॉन्सनट्रेटेड है ना, या डाइल्यूट है कि नहीं। कोई एसिड यूज़ कर रहे हो आप, वो कॉन्सनट्रेटेड है कि डाइल्यूट है ना, ये जो भी इंफॉर्मेशन है उससे रिलेटेड, लेकिन अनहाइड्रस है, ये भी बेटा कहाँ पे लिखी जाती है, उसका जो नाम है ना, उसके नाम के नीचे ये सभी चीज़ें क्या की जाती है, लिखी जाती है। तो इस तरह से बेटा केमिकल रिएक्शंस जब हम केमिकल इक्वेशन के फॉर्म में लिखते हैं तो ये रूल्स हमें क्या करना है, फॉलो करना है। कौन कौन से रूल्स है बेटा केमिकल, ऐसे ही केमिकल इक्वेशन हम लिखते हैं क्या, नहीं, वी गो थ्रू द सम रूल्स, राइट। पर्टिकुलर IUPAC ने जो भी रूल्स दिए हैं टू राइट द केमिकल इक्वेशन ऑफ पर्टिकुलर केमिकल रिएक्शन, वी ओबे दैट रूल्स, है ना। जैसे कि सबसे पहला रूल मैंने बताया था कि रिएक्टेंट हमेशा लेफ्ट साइड में और प्रोडक्ट हमेशा राइट साइड में, दोनों के बीच में, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में एक एरो रहता है, एरो इज पॉइंटेड टुवर्ड द प्रोडक्ट। एरो का डायरेक्शन कौन सी डायरेक्शन में रहता है, प्रोडक्ट के डायरेक्शन में रहता है। उसके बाद जो एरो है वो क्या बताता है बेटा, डायरेक्शन ऑफ द केमिकल रिएक्शन बताता है। उसके बाद मैंने बताया था कि इफ़ देयर आर मोर देन 2 प्रोडक्ट, है ना, या रिएक्टेंट, 2 या 2 से ज़्यादा रिएक्टेंट या प्रोडक्ट रहते तो उनके बीच में हमें क्या ऐड करना है, प्लस साइन रिप्रेजेंट करना है। चलो केमिकल इक्वेशन आपको मोर इन्फॉर्मेटिव करना है ना, जैसे तो उसके नीचे है ना उसकी स्टेट्स लिखना जरूरी है सॉलिड की, जैसे कि सॉलिड स्टेट्स है, लिक्विड स्टेट्स है, गैसेस स्टेट्स है, बराबर। तो उसका है ना, जैसे सॉलिड के लिए यस, लिक्विड के लिए यल, गैसेस के लिए जी, राइट। एक्वस है तो AQ,
है ना, ये स्टेट भी उसके नीचे लिखना ज़रूरी है, बराबर है। उसके बाद कोई आउटसाइड हीट आप देते हो, बराबर है, तो आउटसाइड हीट के लिए ट्रायंगल सिंबल है, वो भी हमें एरो पे लिखना है, राइट। उसके बाद आपकी इसमें किसी रिएक्शन में हीट रिलीज होती है तो प्रोडक्ट साइड में ही प्लस करके हीट आपको लिखना है, राइट। अभी कैटालिस्ट है ना, रिएक्शन में आपका कैटालिस्ट होता है या टेम्परेचर है, प्रेशर है, ये सब चीज़ें लिखनी है, वो एरो के अब या नीचे, है ना, ये रूल्स है बेटा। समझो गैस रिलीज हो रही है तो अपवर्ड डायरेक्शन में एरो देना चाहिए उसके, है, समझो पीपीटी फॉर्म होता है तो उसके साइड में या डाउनवर्ड डायरेक्शन में एरो। तो ये बेटा सभी चीज़ें, ये क्या है बेटा, रूल्स है टू राइट द केमिकल इक्वेशन, है ना, मतलब केमिकल इक्वेशन फॉर्मेशन के लिए हमें इस रूल से जाना है। अंडरस्टैंड? आई होप यू कैन अंडरस्टैंड द केमिकल रिएक्शंस एंड हाउ and the rules how to write the chemical equations. Okay, thank you.